Good morning, students. Today in this video we are going to take up the remaining part of our chapter, What Books and Burials Tell Us. We have covered about the books, the Vedas. We have talked in detail about the four Vedas we are having. We have also learned about the origin of or the family of family languages of various languages which are there all around the world, and we have covered about the things which were considered as assets at that point of time. We have understood what kind of importance cattle, horses and chariots used to get in that period of time. We have understood about yajnas and the sacrifices which were meant for gods and goddesses, and the offerings which include ghee, grains, and in some cases animals also. We have understood the psychology behind the wars also, why the wars were there, what kind of kings were there. They were very different from the kings which we will read about in the recent history. Like the kings were not meant to live in, they were not supposed to, they were not living in rather palaces, and whatever they get from the wars they used to distribute among themselves. Some part is given to the leaders, some to the priest, and the rest is distributed among the people. तो ये सब हमने पढ़ा और सीखा था कि सोसाइटी जो थी उस टाइम की डिफरेंसेस हमने सीखने की कोशिश किए थे कि क्या डिफरेंसेस थे वर्क के हिसाब से। कैसे प्रिस्ट जो होते थे, ब्राह्मण्स जो कहलाते थे, उनका काम रिचुअल्स करना था, और राजा का क्या काम था, और राजा जो थे वो क्या डिफरेंसेस हो सकते थे एंशियंट इंडिया के राजाज में और जो लेटर आपके हिस्ट्री के अंदर राजा पढ़ेंगे. देन वी हैव understood that there were two main prevalent communities over there, like वैश्य थे, जना साधारण व्यक्ति को जन बोला जाता था. देन वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दास एंड स्लेव, दासीज, स्लेव जिनको हम बोलते हैं, and the war the people who are lost the war, they were being captured and taken by the other tribe or other community, and they were made to do the work without any any benefit. So they were known as slaves, like the one who were captured in the war, and they were treated as the property of their owner. Owner means the one who has won the war. So we have understood that Rig Veda was composed in the northwest of the subcontinent. These were the things which we have discussed in the last video as well as in your last live class also. So in the last live class we were talking about, I have started about megaliths. So I will be taking up megaliths in this videos. I will be explaining, and trust you are having your books along with pencils so that you can underline the important marks. So in this portion of the video we will be discussing about the type of buildings, and rather our focus will be of burials. Burials यानी आप एक तरह से उनको grave कह सकते हैं, ठीक है. ग्रेव्स जो मतलब डेड इंसान को जो दफनाया जाता है, वो जो ऐसे साइट्स जब निकल के आती है ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री. You understand why is it so? Because by reading those skeletons, by reading those things which which surfaced from these burials, help us to understand, help us to come to some conclusion about what was happening in that era. उस एरा में क्या हो रहा था. ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस, उनको हम समझने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, और उनसे वो कुछ कंक्लूजन्स जो हैं ड्राइव आउट करते हैं. तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपके हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज, लाइक आई हैव रिटन अबाउट ऑन द बोर्ड ऑल्सो, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर मेगालिथ्स क्या होते हैं, इंडिया के अंदर कॉमन साइट्स क्या है मेगालिथ्स की, और इसमें हम दो केस स्टडीज पढ़ने वाले हैं. केस स्टडी मतलब हम दो प्लेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक तो ब्रह्मगिरी और दूसरा इमाम गांव के बारे में, और उन साइट से हमें क्या फैक्ट्स समझने को मिले. वी अंडरस्टूड दैट देयर वाज सोशल डिफरेंस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो. We will understand that burials, there were some burials were there in which we find one or
means more than one member of the same family will form. Same family in the sense obviously अगर एक ही side पे अगर आपका कुछ ना कुछ relation होगा, that's why we have categorized them as family burials. Then what does the skeletal study tells about? How we like made a conclusion that this is a male body or it was a female body. This thing we have understood with the help of these sites, and then these sites help us to understand about the occupation of the people also. What kind of occupation was prevalent at that point of time, we have learned from these things. Then we will talk about the contemporary, what was happening at that particular time in China. जब ये बरियल्स ऋग्वेदा हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हो रही थी, उस टाइम चाइना में क्या हो रहा था, एक आपको कंटेम्पररी वर्ड के बारे में भी पढ़ना होता है, तो वो भी हम टॉपिक इस चीज के अंदर कवर अप करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मेगालिथ. तो आपको मैंने जैसे बताया कि ग्रेव्स होती थी, बरियल्स होते थे, जिनके अंदर इंसान जो थे दफनाए जाते थे आफ्टर डेथ, जहां पर उनको बरी किया जाता है. When we talk about burials, the most important characteristic feature was the megaliths. जब हम burials की बात कर रहे हैं, ऐसी graves की बात कर रहे हैं, तो सबसे जो important जो characteristic feature था वो megaliths था. Megaliths आप कह सकते हो कि what is megalith? Megalith is a strong boulder. बड़े बड़े पत्थर होते थे जो कि ग्रेव के ऊपर लगा दिए जाते थे. Now these megaliths were big stones which were there on the burial site to mark the burial area. So maybe they can be identified. यही पर्पस रहा होगा उनको कि जहां पर वो ग्रेव बनाते थे उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर जो है वो रख देते थे. इन पत्थरों को ही हम मेगालिथ्स बोलते हैं. और जहां पर ये ऐसी ग्रेव्स मिली और ये पत्थर जब हमने हटाए या इनको खोदा गया नीचे, तो हमें वहां पर स्केलेटन्स मिले जो कि हमारे को बहुत सारे कंक्लूजन्स तक पहुंचने में जिन्होंने हेल्प किया. तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो थे एविडेंस थे जो हमने यूज किए. द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिकेम 3000 years ago. ये जो जब हिस्टोरियंस आपके या जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, when they find out these kind of sounds sites, they drew some conclusion, they come to some conclusion, and these studies tell us that this megalith kind of culture started some 3000 years ago. कुछ 3000 साल पहले ये जो मेगालिथ वाला सिस्टम था कि यानी ग्रेव बनाकर उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था, ये सिस्टम सोसाइटी के अंदर 3000 years पहले से आया एंड वॉज प्रेवलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, दैट इज साउथ एंड इन नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर. तो तीन जो पर्टिकुलर जो मेंशन किए गए हैं साइट्स आपकी बुक के अंदर, सदर्न इंडिया के अंदर डेक्कन के साइड में, और आपका नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, कश्मीर में मिलते हैं. तो ये यहाँ पर एविडेंसेस मिले. नाउ अब ये जो आपको ग्रेव्स मिली या ये जो मेगालिथ्स मिले हैं, ये भी देयर वर सरफेस एंड अंडरग्राउंड ऑल्सो, यानी कि सरफेस के ऊपर, जमीन के ऊपर भी हमको मिले हैं और कई बारी हमको जमीन के अंदर से भी मिले हैं. अंडरग्राउंड मेगालिथ्स भी होते थे, राइट. और जो अंडरग्राउंड आपके मेगालिथ होते थे उसको हम सिस्ट कहते हैं, राइट. अंडरलाइन कर लीजिए, ये 1 mark क्वेश्चन हो सकता है आपकी बुक के अंदर. द बुक विच आई एम हैविंग ऑन पेज नंबर 48, इट इज शोइंग दिस काइंड ऑफ मेगालिथ विच इज अंडरग्राउंड, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं. तो इस तरह के आपके सरफेस के मेगालिथ्स भी थे जो ऊपरी जमीन पे दिखते थे, और कई बार बरियल्स जो थे वो अंडरग्राउंड भी होते थे. ठीक है. समटाइम आर्कोलॉजिकल फाइंड अ सर्कल और स्टोन ब्लंडर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट देयर आर बरियल्स बिगिन्स. यानी जहां हमें ये मेगालिथ्स मिलते हैं वहां हमें ये पता लग जाता है कि भाई यहाँ पर नीचे कोई ना कोई कब्र या ग्रेव है. यहाँ से हमारे को डिग करने पे बहुत सारे जो है फैक्ट्स जो हैं वो हमको मिल सकते हैं, और बहुत सारे फैक्ट्स हमें मिले भी. ओके. तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट्स which are found in India. Deccan, that is in south of India, then northeastern part of India, and in Kashmir. Okay, you might be asked what is a cyst, so you must know that underground megaliths is known as cyst. And now let's go ahead, let's read out. Along with the person that is who was buried, there was various food items and other items that were buried. So we find various kind of pots
grains, animals, these are the things. यानी you will be surprised. आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम यहाँ पर, अब हम उस एरा के अंदर हैं. अब हम, जो हमारी सोसाइटी है इस नॉर्म को फॉलो करती है कि जो भी जीव, जिस भी व्यक्ति की, whosoever is dead, that is the end. हम उसके बियॉन्ड एक और लाइफ की इमेजिनेशन नहीं करते. ठीक है, वी टॉक अबाउट रीबर्थ, वी टॉक अबाउट पुनर्जन्म, बट हम उसको यहाँ पर उसकी मुक्ति ऐसा समझते हैं कि वो परमात्मा के साथ मिल गया, सदगति को प्राप्त कर गया है. उसका हम ऐसा नहीं सोचते कि उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो गई, या अब वो जाएगा तो उसके साथ खाने पीने का सामान दिया जाए, या उसके साथ नौकर भेजे जाए, या उसके साथ हॉर्स भेजे जाए. ऐसा नहीं करते ना हम लोग. दिस बारिंग काइंड ऑफ कल्चर इज नॉट इन हिंदुइज्म, इट इज इन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस. तो आज के जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं जो वो ग्रेव बनाते हैं, उनमें ऐसी चीजें वो नहीं रखते कि मिट्टी के बर्तन है, पानी रख रहे हैं, खाना रख रहे हैं, बिकॉज दे डोंट. नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, और उसके बियॉन्ड उनको कुछ जाके आगे नहीं करना. ऐसा हमारी आज की थिंकिंग है. लेकिन आज से 3000 साल पहले वो लोग क्या सोचते थे, वो हम इस कंक्लूजन पे ऐसे आते हैं कि हमको जो हमें ग्रेव्स मिली हैं, जो लोग बरेड हैं, उनके साथ बहुत सारे मटके मिलते हैं हमको, ब्लैक और रेड कलर के, जिनको हम ब्लैक वेयर और रेड वेयर बोलते हैं, जिनमें फूड और वाटर स्टोर्ड होता था. देन समटाइम वी हैव फाउंड अलोंग विद द स्केलेटन ऑफ अ पर्सन, वी हैव फाउंड स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस. लाइक, या उनको ऐसा लगता था कि घोड़े को भी दफना दिया जाता था इंसान के साथ जो डेड कर गया, कि लाइक वो किसी वॉर पे जा रहा है. हॉर्स ऑर्नामेंट्स भी होते थे, फूड भी उसके साथ रखते थे. लाइक स्केलेटन के साथ वो क्या क्या रख देते थे. कभी कभी आपको उसके साथ ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण, ये जो पहनने के, यानी कि वो उठ के क्या मेकअप कर रहा है या अपने आभूषण चेंज कर रहा है, ऐसी थिंकिंग थी लोगों की. स्टोन और गोल्ड जो है वो सोशल डिफरेंस को दिखाते हैं, यानी कि सोसाइटी के अंदर सोशल डिफरेंस था. कई इंसानों के जो ऑर्नामेंट्स के थे वो पत्थर के थे और कईयों के सोने के थे. तो दैट शोज की सोशल डिफरेंस, अमीरी और गरीबी का भेदभाव उस टाइम था. दैट डिफरेंस वाज देयर इन द सोसाइटी, राइट. तो इस तरह के स्केलेटन्स भी मिले. हमें सोशल डिफरेंस के बारे में भी पता लगा, यानी कि कई बार आपको ऐसे, अब यहाँ पर मैं ये सोशल डिफरेंस सिखाने के लिए आपको आई विल टेक अ केस स्टडी ऑफ अ ग्रेव विच वाज फाउंड इन ब्रह्मगिरी. अब आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मगिरी साउथ के अंदर एक जगह है जो कि रिवर, जो कि ब्रह्मगिरी जो है वो एक इंडियन प्लेस है जहां पर हमको एक ऐसी ग्रेव मिली जिसमें हमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हमारे सामने आया. और वो क्या फैक्ट रहा कि जब उस स्केलेटन को, जब वो ग्रेव खोदी गई एंड जब उसको हमने फाइंड आउट किया, स्केलेटन के साथ 33 गोल्ड बीड्स, इट इज रिटन इन योर बुक, 33 गोल्ड बीड्स यानी सोने के मनके जिनको बोलते हैं, 33 सोने के मनके, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल और एक शंख जो था वो शेल मिला. ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्केलेटन्स मिले जिनके साथ हमें पॉट्स मिले. तो ये जिस इंसान के साथ 33 गोल्ड बीड्स, यानी कि उसके पास अपनी लिविंग लाइफ के अंदर भी इतना गोल्ड होगा, जबकि जो लोग उसकी फैमिली ने या whosoever was related to him, they have put 33 beads of gold in his grave. तो these things make us understand कि वहां पर लोग क्या सोचते थे. और उस टाइम उस एरा में गोल्ड भी था, कॉपर भी था, क्योंकि कॉपर की बैंगल है, स्टोन के ऑर्नामेंट्स भी बनते थे, शेल का यूज भी होता था. लोगों को खाने के लिए क्या क्या निकला, तो उसको स्टडी करके हमें पता लगा कि कौन कौन सी क्रॉप्स उस टाइम यहाँ पर उगाई जा रही थी. तो दिस इज हाउ वी लर्न अबाउट हिस्ट्री. all these things help us to learn about the history, so these things are very very important. तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मगिरी में जो एक ग्रेव मिली उसके अंदर आपको क्या मिला, उसके अंदर हमको 33 गोल्ड बीड्स मिले, जिससे हमें पता लग गया कि गोल्ड वॉज यूज इन दैट एरा, राइट. तो and we also concluded that there was social distance, there was distance in the status amongst the people who were buried. Some were rich, some were poor, maybe जिसके साथ हॉर्स मिला he must be a chief, वो कोई योद्धा हो, कोई वॉरियर हो, उसके साथ मिला, बाकी उसके फॉलोअर्स हो. तो ये ऐसे कंक्लूजन्स ऐसे निकाले जाते हैं, राइट. अब आपको एक और चीज आप बोर्ड पे पढ़ रहे होगे, दैट इज फैमिली बरियल्स. फैमिली बरियल्स मीन्स समटाइम मेगालिथ्स कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन. जब एक ही ग्रेव के अंदर आपको एक से ज्यादा स्केलेटन मिलते हैं तो आप ये सोचने पे विवश हो जाते हो. इट कंपेल्स यू to
come to a conclusion that maybe these two persons were related by blood or something, so that's why they have been buried at one place. And this is also possible that maybe they might have died at the same time, that's why they have buried them in a same place. Or maybe later on they have dig up the a burial place of one person to like add on this that body of some other family member of this family. So nothing is like, you can see there is a confusion, but there are various conclusions which we can make out from this kind of findings. Okay, so ऐसे भी मिले आपको stone circles or blunders placed on the surface probably serve as a sign post कि यहाँ पर बरियल साइट है, और लोग कभी वापस क्यों ये मेगालिथ वो लगा रहे हैं. मे बी वहाँ उस टाइम ट्रेडिशन हो कि एक जो ग्रेव है जिस फैमिली का मेंबर उसमें है, मे बी उसका कोई और डेथ हो तो वापस हम इसके अंदर आके उसको रख सके. मे बी हस्बैंड की डेथ हुई है तो वाइफ को ले आए, या वट एवर, इट कैन बी एनीथिंग, राइट. बट ऐसे एविडेंस है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था, और इसीलिए ये मेगालिथ्स जो थे प्लेस किए जाते थे ग्रेव्स के लिए, ताकि वो उनके साइन बोर्ड्स हो, वो आकर वापस उसको पहचान सकें, उसको डिगअप कर सकें, और जो एडिशनल उन्होंने उसके अंदर बॉडी को बरी करना है उसको वो बरी कर सकते हैं. तो these things have been discussed in detail in your book, and give good reading to your book. Now let's talk about one more case study, that is from Imamganj. And Imamganj is a place in southern part of India, which was like situated on the bank of river God, which was a tributary of river Bhima. Here I want to tell you that multiple, as I always say, that multiple 1 mark question can come inside from the book. So one question, such question is there at the back of your textbook also, like river. मतलब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रिवर जो रिवर गॉड है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है. भीमा नदी की जो है आपको बताना है कि वो ट्रिब्यूटरी है. सो इट वाज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 and 2700 ईयर्स एगो. और इसके अंदर मतलब खास क्वालिटी क्या थी कि जो अडल्ट होते थे. अब आप बोलोगे अडल्ट हमें कैसे पता कि ये बड़े हैं, तो स्केलेटन की हाइट और उसकी बोन्स की काउंटिंग से, दिस इज व्हाट स्केलेटल स्टडी टेल्स अस. स्केलेटल को स्टडी किया जाता है, ये जो कंकाल होता है, जो यू नो ऑल नो व्हाट अ स्केलेटन इज, उसको स्टडी किया जाता है, उसको कैटेगोराइज किया जाता है कि ये अडल्ट की है, या ये चाइल्ड की है, ये मेल की है, या फीमेल की है. अब उसको स्टडी करने के लिए आपको एक पैराग्राफ भी दे रखा है नेक्स्ट पेज पे, व्हाट स्केलेटन स्टडी टेल्स. लाइक मेजर डिफरेंस नहीं होते बॉयज और गर्ल्स की बोन्स के अंदर, लेकिन एक मैन और फीमेल की स्केलेटन के अंदर आप डिफरेंस बहुत जल्दी से कर सकते हो. लाइक आप ये कह सकते हो कि जिस स्केलेटन के ऊपर ज्वेलरी है तो वो वुमेन की होगी. बट रिमेंबर एट दैट in those periods men also used to wear ornaments. आज ज्वेलरी नहीं पहनते मैन, लेकिन उस टाइम में आदमी भी ज्वेलरी पहनते थे. तो जरूरी नहीं है कि स्केलेटन जिसपे आपको ज्वेलरी मिली है, जिसकी नोज प्रीस्ट है और उसमें कुछ गोल्ड का है, तो भाई ये लेडी होगी. फीमेल भी हो सकता है क्योंकि दोनों पहनते थे उस टाइम पे. एक्चुअली जब आप स्केलेटन को स्टडी करते हो तो बोन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो, और जो फीमेल आइडेंटिफाई कहाँ से होते हैं कि उनका जो पेल्विक एरिया है, ये जो उनका हिप एरिया है, वो ज्यादा ब्रॉडर होता है कंपेरेटिव टू मेल बिकॉज ऑफ देयर चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी. सो दीज आर द वेज, दीज आर द साइंटिफिक वेज टू स्टडी द स्केलेटन्स ऑल्सो, राइट. तो हमारे एक बहुत ही फेमस हमारे जो इंडियन फिजिशियन हुए हैं जिनको चरका बोलते हैं, उन्होंने बहुत सारी चरक संहिता, बहुत सारी बुक. ही वॉज वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन इंडिया. तो आपको नाम उनका पता होना चाहिए. और उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, यानी कि लोग उस टाइम पढ़ रहे थे, लिख रहे थे. रिटन एविडेंसेस है हमारे लिए. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से प्राउडली दैट आवर इंडियन culture, our Indian civilization was very very advanced. If you go to some temple or something, I have a very keen interest in
in history, and I always make a point to read about these facts. So I am a very keen reader of the various temple architect which are like architecture which is present in our country. और ऐसे ऐसे temples देखे हैं मैंने देखे भी हैं और उनके बारे में पढ़ा भी है, जहाँ पर पूरा उन्होंने stones के ऊपर पूरा insculpted कर रखा है, पूरा प्रोसीजर ह्यूमन बॉडी का, वेरियस फैक्ट्स जिनके बारे में हम आज सोच के हैरान होते हैं कि इतने 100 साल पहले, इतने हजारों साल पहले भी हमारी कंट्री के अंदर जो लोग थे वो इतने स्किल्ड थे, इतने लर्न थे. इट्स रियली रियली प्राउड थिंग, एंड आई रियली विश कि आप सब लोग भी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ें. तो ये सब हमको इसके बारे में पता लगता है. हमने फैमिली बरियल्स के बारे में पढ़ा, हमने जो फैक्ट्स मिले उनके बारे में पढ़ा, हमने स्केलेटन स्टडी कैसे किया जाता है वो भी पढ़ा. अब मैं आपको ऑक्यूपेशंस भी बता देती हूँ. लाइक जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स मिले. लाइक उनको ग्रेन्स में व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस, सीसम्स मिले. उनको डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स मिले. बोन्स पे कट मार्क्स थे, यानी कि वो फूड की तरह भी यूज किए जा रहे थे. कैटल थे, बफलो, गोट, sheep, dog, horse, ass, pig, sambird, spotted deer, blackbird, all were there. And then the evidence have been found for birds also, crocodile, amphibians also were there, and various fruits like bear, amla, jamun, dates, large variety of berries were there. So ये सब हमें मिला है, तभी हम conclude करते हैं कि ये सब उस टाइम पर था. So this was all about what was happening in those era in our country India. And आपके हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ भी पढ़ना ज़रूरी है. कंटेम्प्रेरी यानी कि उस टाइम में सिमिलर टाइम में आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा था. तो यहाँ पर कोट किया गया है चाइना के बारे में, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि अराउंड what we have read in this chapter about India, that was also 3,500 years back. एंड चाइना में उस टाइम क्या हो रहा था वो बता रहे हैं कि चाइना में राइटिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी. चाइना के अंदर एनिमल बोन्स पे भी राइटिंग की जाती थी और उनको ओरेकल बोन्स बोलते थे. क्वेश्चन आता है इसमें से, राइटिंग ऑन द बोन्स, व्हाट आर दोज बोन्स कॉल्ड? ओरेकल बोन्स. और क्या होता था, उनको फायर में उनको जो है क्रैक किया जाता था, उनको हीट अप करके क्रैक किया जाता था, और फिर वो जो शेप आती थी ना उससे कुछ वो फॉर्च्यून टेलिंग का भी करते थे. दो वी कैन से इट वाज अ सुपरस्टिशन काइंड ऑफ थिंग, बट इट वाज देयर प्रैक्टिस. वो ऐसा कुछ करते थे, वो फ्यूचर पढ़ते थे इस तरह की हड्डियों को आग में क्रैक करके. और क्या हिस्ट्री हमें बताती है. चाइना के अंदर उस टाइम किंग्स ने पैलेसेस में रहना शुरू कर दिया था. देखिए हमने पढ़ा था कि इंडिया के अंदर उस टाइम जो किंग थे वो अभी भी पैलेसेस में नहीं रह रहे थे. दे वर लिविंग लाइक अ नॉर्मल पीपल, दे वर नॉट बिल्डिंग पैलेसेस एंड एवरीथिंग. और जबकि चाइना के अंदर वास्ट क्वांटिटी ऑफ वेल्थ जो थी वो इकट्ठी हो चुकी थी. ब्रॉन्ज का यूज हो रहा था, आयरन का यूज वहां पर नहीं हो रहा था. तो ये चीजें हमें हिस्ट्री से ही पता लगती हैं, वरना आज से 3,500-4,000 साल पहले क्या हुआ, हाउ कुड वी नो? This is history which is telling us all these things. And how they are finding out? They are finding out from the inscriptions, from the monuments, from this digging up these burial places. So they coins, inscriptions, books, everything, manuscripts, these are helping us to excuse me, find out all these history, right? So this was, I think we have covered each and every topic from this chapter. I want you to be ready with your doubts in the upcoming live session, and by this our chapter will be completed today. So I will be sending you question answers which you need to note down in your notebooks very neatly, and be ready with your doubts. I will be taking your doubts regarding this chapter in today's live class. That's all from my end for this chapter. Bye bye. Take care of yourself.